Okay. Hi, folks. So let us start our. Okay. So hi, folks. Let us start our session. Since most of you know what is the order of the day, we'll be covering. You have these two chapters in your unit 4. If you see, you have these two chapters. One is called as single sample hypothesis testing. We've already started with the beginning of this. I'm going to quickly revise through that portion. कि ये सिंगल सैंपल के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं. A lot of inference what we are going to take in today's class is going to come from chapter number 8 जो आपने already कर लिया होगा. But assuming that you've not done it properly, we're going to quickly revise that, and then we're going to talk about what is this p value. We are going to talk about what is this t distribution, how to check t distribution. So all of that we'll cover in today's class. In tomorrow's class we'll be covering two sample tests. And if you see the kind of pattern of the questions that are asked, typically there will be 3 questions of 10 mark each which will be asked from this particular section. So out of the 90 marks that you have, उसमें से 30 marks के questions, at least 30 marks के question यहाँ से हैं, if not 40 marks. So that is how important this particular section is for your course. And I'll be using my own notes. I've already sent you my notes. So you can have a look at them, and I'll be using them throughout the class, as well as I'll be making certain diagrams on my deck. So this is how we'll begin, and if you have any questions, you can raise your hand, or you can type it in the chat box, and we'll take it from there. Fine, let's start. We'll finish the chapter in an hour or so. And उसके बाद you can try out multiple questions, you can try different questions on this particular topic, and I don't think you will face any problem with this. Okay, and my as most of you know that the way that I take my sessions are always bilingual, so it'll involve a lot of examples in Hindi and English both. Chalo, let's start, folks. I'll just switch off my camera and I'll switch on the other aspect. Hold up. Can you see my screen, folks? Can you say yes or no? I can't check it out. Can you see the document that I'm sharing? Just a yes or no would do. Just a second. Okay, now I think you can see it. All right. So let us begin with our topic. What we had discussed earlier as well, and simultaneously I'll be using my deck for showing you different things. So I'll be typing out here. Okay, we are ready to go now. Let's see this particular document that I've created. Now if you see this document, if you can read it, what I've initially explained you. So just remove these settings. Give me a moment. So if you see this document, you will see that I have noted down a number of things. Now let me discuss all of this. First of all, हमें पता होना चाहिए what is this random normal distribution. Now this normal random distribution, कोई भी experiment आप करोगे तो उससे एक और उसका outcome अगर आपको नहीं पता होगा तो that gives you a random variable. And in this case, suppose we are saying कि हमने कोई experiment किया, or say what are the marks of students in a particular class. तो उस केस में मार्क्स जो आ जाएंगे स्टूडेंट्स के, वो जो हो जाएगा एवरेज CGPA जो हो जाएगा वो x हो जाएगा, और उसमें हम कह रहे हैं दैट इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद म्यू एक्स इज मीन एंड वेरिएंस इज दिस. नाउ व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ सपोज अगर मैं हाइट और वेट को कंपेयर करता हूँ, तो हाइट और वेट को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आई कांट पुट इट ऑन इन द सेम बास्केट, क्योंकि हाइट तो हो जाएगी सेंटीमीटर में, वेट होगा आपका किलोग्राम्स में. तो हाउ कैन आई कंपेयर. सो सपोज आई से समवन, अगर मैं 2 इंडिविजुअल्स लेके चलता हूँ, ठीक है, ये एग्जांपल मैं कई बार क्लास में भी देता हूँ, सो पीपल फ्रॉम माय क्लास कैन प्रॉब्ली अंडरस्टैंड दिस, दैट सपोज आई से दैट देयर आर 2 इंडिविजुअल्स. ठीक है, एक इंडिविजुअल है, क्लास का एवरेज मान लो 50 kgs है वेट का, एंड समवन हु इज वेइंग 55 kgs. दिस पर्सन who's 5 kgs higher या कोई 45 kgs का हो, you cannot make out a person जो 45 kgs है या 50 kgs है और कोई 55 kgs है, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा as compared to someone who's 70 kgs. 70 kgs और 50 kgs वाले में डिफरेंस आपको दिखना शुरू हो जाएगा. सिमिलरली अगर मैं हाइट के बारे में बात करूँ, if someone is 5.5 inches
और कोई 5.6 इंचेस है और कोई 5.4 इंचेस है तो आप पता नहीं कर पाओगे, बट समवन हु 6 फीट वो आपको अलग से दिख जाएगा. सो हाउ, और ये अगर क्लास का एवरेज है तो वी वांट टू सी कि आपका जो नॉर्मल एवरेज है उससे कितना दूर है ये. अब यहां पर वो कितना दूर जो है वो 6 फीट के अंदर है, यहां पर जो कितना दूर है वो केजीज के अंदर है. तो हाउ कैन यू कंपेयर these two distributions if you have to compare in terms of ki how far is someone from the average? I can't compare it with this like this. So what I do is I standardize it. और standardize करने का क्या तरीका होता है, जितनी भी आपके observations हैं उसको x को माइनस कर लो आप मीन से. So what will happen is जितनी भी observations होंगी वो सारी मीन से माइनस होते के साथ ही उनका स्केल चेंज हो गया. This 70 becomes 20 and someone who's 45 becomes -5. This 55 becomes +5. So your scale has changed. This 50 has become, what has this 50 become? पहले ये 50 वाला जो इंसान था this has become 0 और जो 70 वाला kgs था this has become 20 and ये 45 वाला has become -5. So you've changed the scale. Now what you do is you divide it by the standard deviation और standard deviation डालते के साथ ही आपने क्या किया, आपने इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था जो उसका वेरिएंस था और उसका वेरिएंस का स्क्वायर रूट जो स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपने उससे डिवाइड कर दिया तो आपने इसको यूनिट लेस कर दिया. और यूनिट लेस करके नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव मेड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था which was say something like this 50 kgs and then someone was like 70 kgs, कोई 45 kgs था, कोई 40 kgs था. इस डिस्ट्रीब्यूशन को आपने कन्वर्ट कर दिया है इनटू अ जी स्केल where this 50 will be equal to 0 और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है this distribution will be a normal distribution with mean as 0 and variance as 1. तो ये आ जाएगा first standard deviation away from mean. This person will be क्या कहते हैं, what will be the mean plus 1 standard deviation. This person और जो second standard deviation पे वो ये है, second जो ये वाले बंदे हैं ये second दो standard deviation away from mean है. Someone who's 3 standard deviation from mean will be very different. तो अब आपने क्या कर दिया, अब आपने सबको डिफाइन कर दिया in terms of how far is someone from the how far are you from the mean in terms of standardized units. तो अब कोई इंसान है जो 70 kgs है, I can say that this person is 3 standard deviations away from the average. तो उसका z जो होगा वो 3 आ जाएगा. Z3 का मतलब है कि he is 3 standard deviations away from the normal person. Similarly जो बंदा 6 feet का था, जो यहाँ पर 6 feet का रहा था और ये 5.5 था, we can say that this person is say 3 standard deviations away from mean. तो ये दोनों जो हैं अब comparable हो गए हैं क्योंकि ये दोनों अपने जो मीन है उससे दूर हो गए हैं और बाय 3 standard deviation. तो जब आपके पास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, this is a distribution of height and this is a distribution of weight, how can you compare these two distribution? By converting them into a z-score. तो ये z scoring जो है ये बहुत ज़्यादा important हो जाती है with respect to all of this. Wait a second folks. There are a lot of questions in all three books mentioned what should be our strategy. अरे ये strategy पहले पढ़ तो लो फिर तो strategy लेके आओगे, अभी पढ़ाई कहाँ करी है जो strategy करोगे. So एक बार पढ़ लो उसके बाद I'll show you questions and then you can solve, you can take up, I'll take up a doubt session जिसमें you can ask all your questions, जो भी आपके questions आपके hypothesis testing को लेके you can ask all of them. So ये aspect था जिस पर मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये change of origin है, ये change of scale है. And what we have done is we have standardized this and we have made them into z scale. Z scale का मतलब अगर कोई z की वैल्यू 1 है तो that person is 1 standard deviation away from the mean. कोई z की वैल्यू 2 है तो वो 2 standard unit दूर है मीन से. z की वैल्यू 3 है तो वो 3 standard unit दूर है, मतलब बहुत ज्यादा दूर है from what is the average value. तो सपोज आपकी क्लास का जो टॉपर है, आपकी क्लास का एवरेज आ रहा है 5 या 6 CGPA और किसी का 9.9 या 9.5 CGPA है, तो वो बहुत ज्यादा दूर है आपकी क्लास के एवरेज. सो दैट पर्सन इज 3 और मोर स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे फ्रॉम द मीन ऑफ द क्लास. सो दिस इज हाउ यू शुड सी दिस पर्टिकुलर इशू. देन अब हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट जो चीज है ये आपने, आई होप दैट यू वुड हैव स्टडीड दिस इन योर स्टैटिस्टिक्स बट आई एम रिपीटिंग इट फॉर एवरीवन हु डजंट नो दिस. हम क्या करते हैं जब हम सैम्पलिंग डिस्टोर, यहीं पे CLT का भी यूज आता है, जब हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन लेते हैं. अब हमने यहां पर क्या किया हुआ है, इफ यू सी दिस व्हाट वी आर डूइंग इज आपके पास
अब आपके पास एक मीन नहीं है, अब आपके पास बहुत सारी मीन है। अब वो बहुत सारे मीन कैसे हैं? सपोज मैं चाहता हूं कि मैं गार्गी कॉलेज में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो देखना चाहता हूं कि एवरेज स्कोर फर्स्ट सेमेस्टर में कितना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पूरे कॉलेज का देखना चाहता हूं। आई वांट टू सी द एंटायर गार्गी कॉलेज सीजीपीए। ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट टू सी। सो व्हाट आई कैन डू इज आई नीड टू फाइंड आउट कि ये पॉपुलेशन, ये सारे बच्चों का स्कोर है x। ठीक है, हर बच्चे का स्कोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम x वेरिएबल ले रहे हैं which say we are saying that it is normally distributed with mean this and variance this. अब we are trying to find this mu. यही पूरे पॉपुलेशन में 4,500 बच्चे, 5,000 बच्चों में से we are trying to find mu. What we instead do is we take a sample. हमने क्या किया, हमने एक सैंपल लिया 50 बच्चों का, ठीक है, या 20 बच्चों का सैंपल लिया, उससे हमारे पास एक मीन आ गया, हमने एक सैंपल लिया और उससे हमारे पास एक आ गया मीन x1 बार। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने एक और सैंपल लिया और उस सैंपल से मेरे पास आ गया x2 बार। अब इसको बोलते हैं सैम्पलिंग वेरिएंस। आपने कब कौन सा सैंपल लिया और हर सैंपल से सैंपल में कन्वर्ट चेंज होना शुरू हो जाएगा आपका मीन। फिर मैंने एक और सैंपल लिया, उसका आ गया x3 बार मीन। फिर मैंने एक और सैंपल लिया, उसका आ गया x4 बार। सो आई कैन कीप ऑन टेकिंग सैंपल्स and every sample will give me a different mean, can give me a different mean. This is called as sampling variability. इसी को हम बोलते हैं sampling variability। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, क्योंकि सैंपल जो है वो चेंज हो सकता है और वो जो आपको जो मीन और वेरिएंस देगा वो डिफरेंट हो सकता है। अब आप क्या करते हो, आप इन जितने भी आपके मीन्स आए हैं, ये सैंपल मीन्स आए हैं, ये सैंपल मीन जो है ये अपने आप में एक रैंडम वेरिएबल है। व्हाई इज इट अ रैंडम? रिमेंबर व्हाट इज अ रैंडम वेरिएबल? रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल व्हिच चेंजेस इट्स वैल्यू फ्रॉम एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट। नाउ यू रन एन एक्सपेरिमेंट, यू हैव टेकन वन एक्सपेरिमेंट एंड उसकी वजह से आपका एक एवरेज आया, फिर दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो दूसरा मीन आ रहा है। तो यू कैन मेक अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। तो ये क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है? दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपलिंग मीन, जहां पर ये आपका हो जाएगा x3 बार आ जाएगा, ये आ जाएगा x2 बार, ये आ जाएगा x1 बार, ये आ जाएगा x4 बार, और कुछ आपका आ जाएगा यहाँ पर मीन ऑफ ऑल दीज मीन्स विच विल बी x बार बार विच इज बी सुपर मीन। तो मीन्स का मीन। अब ये देखो कि जब आप वैल्यूज ले रहे हो, जैसे अगर मैं आपको कहता हूं कि आप अपनी क्लास का एवरेज लोगे, तो आपकी क्लास का एवरेज CGPA का अगर आप लोगे इको ऑनर्स का, तो सपोज आपने कहा कि वो आया मेरा 6, ठीक है। अब इस 6 का मतलब क्या हुआ? इस 6 का मतलब हुआ कि किसी बच्चे के मार्क्स हो सकता है 9 आ रहे हो, किसी का CGPA, किसी का हो सकता है 4 और अल्टीमेटली एवरेज बन के 6 आ गया। तो यहां पर वेरिएशन कितना हो सकता है? 4 to 9। अब उसका एवरेज 6 आया है। अब आप दूसरी क्लास के एवरेज देखोगे तो उसका क्लास का एवरेज जो होगा वो भी ऐसे ही होगा, किसी का 5 आ रहा होगा और किसी का 10 आ रहा होगा, बीच में हो सकता है एवरेज 7 आ रहा हो। फिर ऐसे ही एक और आप ये बेसिकली सेकंड मीन हो गया। इफ दिस इज x1 बार तो दिस इज x2 बार। आप ऐसे ले रहे हो। तो अब ये देखने की कोशिश करो, द डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन, जो अगर सैंपल मीन्स लोगे एक सैंपल का दूसरे सैंपल मीन के साथ, तीसरे सैंपल मीन के साथ, तो उनके बीच में जो वेरिएंस होगा, उनके बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो छोटा होगा। एक क्लास में बच्चों का स्कोर बहुत ज्यादा वाइड हो सकता है, किसी का 0 भी हो सकता है और किसी का 10 भी हो सकता है, बट एवरेज नहीं हो सकता ना। किसी क्लास का एवरेज 0 तो हो नहीं सकता, किसी ना किसी के तो नंबर आए होंगे। क्लास का एवरेज, बुरी से बुरी क्लास का एवरेज कितना हो सकता है? 4। और अच्छी से अच्छी क्लास का एवरेज कितना हो सकता है? 8। तो अब कैन यू सी कि द डिफरेंस जो आपका जो वेरिएंस है, वो मीन्स का जो वेरिएंस है वो कम है एज कंपेयर टू ऑब्जर्वेशंस का वेरिएंस। दिस इज ऑब्जर्वेशन का जो वेरिएंस आ रहा है वो ज्यादा हो सकता है, और मीन्स का जो सैंपल मीन्स का जो वेरिएंस होगा वो कम होगा। इसीलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इस x बार का जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x बार will have a normal distribution with mean as mu and variance as sigma square upon n। ठीक है, this is, और इसको sigma square upon n को अगर आप अंडर रूट ले लोगे, अगर इसका अंडर रूट ले लोगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाता है which is sigma upon under root n। sigma upon under root n is called as standard error। Why is it called standard error? बिकॉज ये बेसिकली बता रहा है कि एक सैंपल से दूसरे सैंपल में जाने तक आपका एवरेज जो है कितना चेंज हो रहा है।
कि कितना एरर, इसीलिए हम इसको एरर भी बोलते हैं कि स्टैंडर्ड एरर कितना हो सकता है इफ यू मूव फ्रॉम वन सैंपल टू अनदर सैंपल, और दिस विल बी दिस, एंड this exact proposition is given by also given by CLT. CLT क्या बोलता है, अब यहीं पे CLT समझो कि CLT क्या बोलता है. CLT बोलता है कि आपका पॉपुलेशन जो हो वो कैसा भी हो, आपका पॉपुलेशन नॉर्मल हो, आपका पॉपुलेशन बाइनोमियल टाइप हो, आपका पॉपुलेशन पॉलिनोमियल हो, आपका पॉपुलेशन टी डिस्ट्रीब्यूशन हो, आपका पॉपुलेशन हाइपोजेमेट्रिक हो, we do not matter, it does not matter. If n is greater than 30, अगर आप n greater than 30 लोगे, पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी नॉर्मल, इट कैन बी नॉन नॉर्मल एज वेल, नॉर्मल ना भी हो तो भी चलेगा. अगर ऑब्जर्वेशन 30 से ज्यादा है तो उस केस में इन पॉपुलेशन से निकलता हुआ जो x बार होगा, x bar which is trying to estimate the mean of these of these different kinds of population will have a normal distribution, will have a normal distribution with mean as mu and your variance as x bar of sigma square upon sigma upon under upon n. ठीक है, तो this proof is this theorem is given by CLT, central limit theorem. वो बेसिकली इसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी इसीलिए बोलते हैं. वो कहता है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो, अगर आप सैंपल मीन लोगे तो सैंपल मीन अगर और आपका n जो है वो 30 से ज्यादा है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट दी पॉपुलेशन इज, आपका जो सेंट्रल टेंडेंसी होगी ऑफ x बार इट विल बी लिमिटेड बाय दीज टू पैरामीटर्स, इसीलिए उसको सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी बोलते हैं. ठीक है, सो अब कमिंग टू ये तो हो गए हमारे बेसिक्स जो हमने पहले भी पढ़े थे. ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू दिस. यही मैंने यहां पर सब कुछ सेम चीज लिखी हुई है. और अगर अब आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को, नाउ सी दिस हमने क्या कहा था, स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन से. ये तो हुआ x को जब आपने स्टैंडर्डाइज किया. अभी यहां पर x नहीं है, यहां पर हम x की बात कर रहे हैं और रैंडम वेरिएबल इज नॉट x, योर रैंडम वेरिएबल इज x बार. x बार को जब आप स्टैंडर्डाइज करोगे तो कैसे करोगे, the standardization of x bar will be x bar minus mu upon, अब यहां स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, यहां स्टैंडर्ड डिविएशन हो जाएगा सिग्मा अपॉन अंडर रूट n, क्योंकि योर x बार इज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन एज म्यू एंड वेरिएंस एज दिस. ये तब था when x was your random variable with mean as mu and your variance as this. तो यहां पर ये रिप्लेस करोगे ना इस चीज से. This is how you will standardize this, and this portion, this denominator is called as standard error. So you can write this as x bar upon mu upon standard error of x bar भी. इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो z को. So this is something that you need to remember for your exam, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज अभी भी आएगा. And in your next to next semester when you will study econometrics, ये बहुत ज्यादा यूज आने वाला है. So take care of this particular factor as well. Now let's talk about ये सब कुछ वो है जो मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुका हूँ. ठीक है, now let's see. तो ये मैंने पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर किया हुआ है. सेंट्रल लिमिट थ्योरम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. दैट सैंपल मीन फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. CLT सेज कि x1 to xn from any population, that means any population distribution, normal, binomial, Poisson, with mean as mu x and variance as this, sample mean x bar tends to be normally distributed with mean as this and variance as this. ठीक है, so this is something that we did. और t के केस में क्या होता है, t के केस में अगर आपके पास ज्यादा सैंपल नहीं होते हैं तो उस केस के अंदर क्या कहते हैं, हाँ, अब आपके पास क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है, वी आर टॉकिंग अबाउट z एज x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट n. अब प्रॉब्लम है कि x बार तो क्या होगा, x बार हम बात करेंगे कि x बार तो आ जाएगा सैंपल से. ठीक है, ये तो आपके सैंपल से आ जाएगा. ये आ जाएगा, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास अटेंड करी है, ये आपका आ जाएगा हाइपोथेसिस से. जो भी चीज आप हाइपोथेसिस ले रहे हो, जो नल हाइपोथेसिस आप लोगे, तो ये वहां से आ जाएगा. ये आ जाएगा कि आपके पास सैंपल साइज कितना है, ये वहां से आ गए. बट ये कैसे आएगा, ये तो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डिविएशन है. दिस यू डू नॉट नो, वी डू नॉट नो दिस. So what we do is we replace this with sample variance. ठीक है, and sample variance is sigma
योर x bar minus x bar upon square into n minus 1, ये इससे आप रिप्लेस करोगे, तो इससे आप रिप्लेस करोगे तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस फ्रॉम z टू t, दिस वेरिएबल x bar minus mu upon sx upon under root n, this has a t distribution with n minus 1 degrees of freedom. अगर n लेस देन 30 है, वो उसमें भी स्मॉल सैंपल टेस्ट लग जाते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम टी डिस्ट्रीब्यूशन तब भी लगेगा, क्योंकि इन जनरली टी डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा क्योंकि आपके पास कभी भी ये नहीं होगा, यू विल नेवर हैव सैंपल, यू विल नेवर हैव पॉपुलेशन वेरिएंस. पॉपुलेशन वेरिएंस है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन आपके पास कभी नहीं होगा. इसलिए नॉर्मल लाइफ में हम हमेशा टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं रादर देन योर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, योर जी डिस्ट्रीब्यूशन. क्वेश्चंस में हाइपोथेटिकली गिवन दे रखा होगा, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता. सो वी से दैट दिस वेरिएबल t which is represented by x bar minus mu upon sample variance, sample standard deviation upon under root n has t distribution with n minus 1 degrees of freedom. Now the question rises is what is this n minus 1 degrees of freedom, और मैंने भी यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर degrees of freedom भी explain किया हुआ है छोटे से में नीचे. So what does this degrees of freedom mean? This means कि suppose मैं अब आपको बोलता हूँ कि आपने 3 नंबर लिए. कौन से 3 नंबर लिए? n आपने लिया, एक इज n इज इक्वल टू 1, दूसरा n लिया 2 और तीसरा n लिया 3. अब जब आप इसका एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा? इफ यू ऐड दिस अप यू विल गेट x बार इज इक्वल टू 6. तीनों का ऐड करोगे 6 अपॉन 3, आपके पास आ गया 2. तो x बार आपके पास 2 आ गया. आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या है? x1 वाज इक्वल टू 1, x2 वाज इक्वल टू 2 एंड x3 वाज इक्वल टू 3. ठीक है, ये 3 आपकी ऑब्जर्वेशंस है. नाउ सपोज, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल मैथ्स है. नाउ सपोज आई चेंज ऑल ऑफ दिस एंड आई से कि मैं कहता हूं कि मैंने x बार जो है वो फिक्स कर दिया. आई हैव फिक्स्ड x बार एट 2. अगर मैंने फिक्स x बार कर दिया 2 पे, और उस केस में क्या होगा? इन 3 ऑब्जर्वेशन में से सिर्फ 2 ऑब्जर्वेशन ऐसी होंगी जो कोई भी वैल्यू ले सकती है. फॉर एग्जाम्पल x1 और x2 कोई भी वैल्यू ले सकती है इस केस में, क्योंकि मीन फिक्स्ड है तो x1 और x2 कोई भी वैल्यू ले लेगी. बट x3 जो है उसकी वैल्यू फिक्स हो गई है, बिकॉज x3 will be such that x3 will be what will be x3 will be such that it has to be that हमारा वो क्या था? x1 plus x2 plus x3 divided by 3 was equal to x bar. अब मैंने ये फिक्स कर दिया. ठीक है, तो बेसिकली x, अगर फिर उस केस में क्या होगा? x3 हैज टू बी इक्वल टू 3x बार माइनस x1 माइनस x2. ये हमने फिक्स कर दिया. ये कोई भी वैल्यू ले सकती है, ये कोई भी वैल्यू ले सकती है. x3 की तो वैल्यू फिक्स हो गई ना. एक बार आपने ये वैल्यू फिक्स कर दी तो सिर्फ x1 और x2 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. उसके बाद x3 की वैल्यू तो ऐसी ही आएगी. तो इसका मतलब ये हुआ, सपोज इसी केस में मैंने कह दिया कि x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, तो x3 क्या कोई और वैल्यू ले सकता है 3 के अलावा? अगर मैंने मीन फिक्स कर दिया 2, उसको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. और वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्यों आता है? क्योंकि जब हम ये एस्टिमेट, हमने क्या एस्टिमेट करना है? अगर t को एस्टिमेट करना है तो हमें sx को एस्टिमेट करना है. व्हाट विल बी sx? sx विल बी समेशन x माइनस x बार स्क्वायर अपॉन n माइनस 1. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे सैंपल का मीन निकालना पड़ेगा. और एक बार मैंने मीन फिक्स कर दिया तो मीन फिक्स करने का मतलब मैंने एक ऑब्जर्वेशन तो लूज कर दी है, और एक ऑब्जर्वेशन लूज कर दिए, इसीलिए हमारा जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा इस पूरे वेरिएबल का, रैंडम वेरिएबल का, वो हो जाएगा n-1. ठीक है, तो इस तरीके से n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. इसको आपको रटना नहीं है, इसको आपको समझना है. मोस्टली कॉलेजेस में, वैसे भी इन जनरल, मैं जब कॉलेज में था हमें भी रटवा दिया जाता था. But you need to understand why this n-1 degrees of freedom holds true. Why is it called n-1 और वो कैसे आता है? I hope ये समझ में आया n-1 degrees of freedom. यहाँ तक बेसिक्स हो गए. उसके बाद हम अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 10 मिनट में कर लेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग. यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ? Yes, no, folks. Weekly type in the chat box. Okay, so let us now see the other aspect. Let us now see हमारा ये था, यहाँ पर मैंने ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है. नाउ लेट्स गो टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग. अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये मैंने पूरा आपको पहले भी समझाया हुआ है. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस क्या होता है. स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस होता है कि आप पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हो फ्रॉम अ सैंपल,
एंड उसको करने के 3 तरीके हैं, एक पॉइंट एस्टिमेट निकालना, एक इंटरवल एस्टिमेट निकालना और एक हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना। इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्या करते हैं, हम पॉपुलेशन के एक पैरामीटर को अज्यूम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि वेदर सैंपल इज कन्फॉर्मिंग टू दैट और नॉट। तो बेसिकली जो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप क्या कर रहे हो, आप म्यू को अज्यूम कर रहे हो, यू आर अज्यूमिंग अ म्यू, और फिर आप देख रहे हो सैंपल से क्या वैल्यू आई, और देख रहे हो कि जो सैंपल से वैल्यू आई है और जो मैंने अज्यूम करा है ये आपस में पास पास हैं कि ये दूर हैं। तो आप बेसिकली सैंपल के पैरामीटर को पॉपुलेशन के अजम्पशन से आप कंपेयर कर रहे हो, एंड देन यू आर ट्राइंग टू सी वेदर योर अजम्पशन वाज क्लोज टू व्हाट इज आल्सो देयर इन given by the sample, or it is not close to what is given by the sample. If it's close to what is given by the sample, you say that I will not reject my hypothesis. आपने assume किया, suppose मैं आपके बारे में assume करता हूं कि you are a good student, I am assuming you are a good student, और मैंने आपसे आपका 2 सेमेस्टर का CGPA मांगा and that CGPA was good, तो और वो अच्छा भी था, तो my assumption that you are a good student is basically confirmed by the sample that you have given me, and I say that my assumption is right, which is basically I do not reject my assumption, that I do not reject my hypothesis. Assumption या उसी को हम hypothesis बोलते हैं. You do not say that I accept my hypothesis, you say I do not reject it. But suppose मैंने assume किया that you are a good student, बट आप कह रहे हो कि मेरा CGPA तो 4 आया, तो वो बेसिकली दिखा रहा है कि दिस इज एक्चुअली अ बैड स्टूडेंट, तो आई विल से दैट माय अजम्पशन इज नॉट कन्फॉर्मिंग टू व्हाट माय सैंपल इज गिविंग मी। तो उस केस में आप कह दोगे कि आई रिजेक्ट माय अजम्पशन व्हिच इज नथिंग बट आई रिजेक्ट माय हाइपोथेसिस दैट द स्टूडेंट इज अ गुड स्टूडेंट। This is how you should see hypothesis testing, that you assume something about the population and you try to validate or you try to see whether that is being validated, that is being concurred by the sample as well. तो सिमिलरली हम, जैसे मैंने आपको लीगल सिस्टम में बताया था, लीगल सिस्टम में H नॉट होता है जो आप अज्यूम करते हो, जो नल हाइपोथेसिस को हम नल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, व्हाट यू आर अज्यूमिंग, एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज स्टेटस क्यू, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थ्योरी बोल रही है। लॉ के अंदर हम कहते हैं कि एवरी पर्सन इज इनोसेंट, हमारे बंदे को बोलते हैं कि वो इनोसेंट है, एंड देन व्हाट इज योर अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसका है गिल्टी। तो योर जॉब इज टू प्रूव, अगर मैं स्टेट का प्रोसिक्यूटर हूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको हम बोलते हैं, अगर मैं वो हूं, तो माई जॉब इज टू शो दैट दिस पर्सन इज गिल्टी। जैसे वो जो ब्रिजभूषण है, जो इस वाले केस में था, योर सेक्सुअल हरासमेंट वाले केस में था, the courts will assume that this person is innocent and it is the job of the public prosecutor to prove that no, he is guilty. तो you will have to produce, तो आपको innocent से guilty तक जाने के लिए you need evidence. This is what you need to show. आपको evidence चाहिए to show that this person is guilty. Give me one moment first. Give me one moment. Folks, you have to give me a 2-minute break. I'll be back in apologies. Now let us so basically I was trying to say that you need to prove someone guilty. If you want to prove someone guilty, then in that case there needs to be sufficient evidence to do that. ठीक है, तो तभी आप कर पाओगे। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं कि आपने जो अज्यूम किया है, अगर मैं बोलूं जो आपने अज्यूम किया है वो म्यू अज्यूम किया है, ठीक है, और now you will say कि when will you say कि मेरा जो सैंपल से वैल्यू और आपके एक x बार है, ये आपने अज्यूम करा अबाउट पॉपुलेशन, दिस इज योर अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन। नाउ यू विल गेट एन x बार, आप एक x बार मिलेगा फ्रॉम अ सैंपल, ये आपकी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, ये सैंपल से बनी। अब आप ये देखना चाहते हो जो सैंपल से वैल्यू आई और जो आपने अज्यूम किया, व्हाट यू हैव अज्यूम्ड, ये कितना पास हैं या कितना दूर हैं। इफ दे आर वेरी फार ऑफ फ्रॉम ईच अदर, सपोज ये आपने अजम्पशन लिया एंड व्हाट इज कमिंग फ्रॉम द सैंपल इज समथिंग लाइक दिस, तो दीज टू, अगर आप ये दोनों, ये दिस इज व्हाट द सैंपल इज गिविंग यू एंड दिस इज व्हाट यू हैव अज्यूम्ड, इफ दीज टू आर टू सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत दूर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये एक्स जो है वो न्यूज जो है वो एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, और दूर होंगे तो आप क्या बोलोगे, दैट this lies in the rejection। तो basically कहोगे कि I will reject my null because my sample is telling me something else from what I've assumed। तो similarly
अगर आप ये म्यू कह रहे हो कि ये पर्सन जो है इनोसेंट है, अगर ये जो आपके पास एविडेंस है वो ज्यादा ज्यादा कन्विक्शन के साथ प्रूव नहीं कर पा रहा, तो आप ज्यादा प्रूव नहीं कर पाओगे। टू प्रूव कि ये बंदा एक्चुअली में इनोसेंट नहीं है, यू हैव टू शो सफिशिएंट एविडेंस कि नहीं दिस पर्सन इज गिल्टी। तो आपको दूर दिखाना है कि सैंपल से जो वैल्यू आ रही है वो बहुत दूर है फ्रॉम व्हाट यू हैव अज्यूम, और वो दूर यहां पर भी हो सकता है और वो दूर यहां पर भी हो सकता है। इन केस ऑफ अ टू सैंपल, इन केस ऑफ अ टू टेल टेस्ट, वो यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। So this is what you are trying to do. You're taking a population assumption and you're trying to see whether if the sample is telling me a similar story, in that case जो सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो आपस में काफी ज्यादा मर्ज कर रहा होगा, नहीं तो वो बहुत दूर दूर आ रहे होंगे। एंड दिस इज व्हाट इज गिवन बाय z. व्हाट इज z? z इज नथिंग बट x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर। अब अगर सैंपल और अजम्पशन जो है, जो सैंपल से आ रही वैल्यू और जो अजम्पशन है, अगर ये बहुत दूर है एक दूसरे से, तो z की वैल्यू जो हो जाएगी वो एक्सपैंड होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चाहे वो माइनस, क्योंकि ये माइनस में भी वैल्यू एक्सपैंड हो सकती है। z इज बेसिकली फ्रॉम -4 से लेके +4 तक जाता है। तो अगर z की वैल्यू ज्यादा आ रही है उसका मतलब क्या हो रहा है कि x बार और म्यू के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एक्सपैंड, दैट इज इंक्रीजिंग, एंड इफ दैट इज इंक्रीजिंग दैट शोज that you are going to reject the null hypothesis that you've taken. ठीक है, so this is how you should go about it. यहाँ तक I hope you've got it. ये चीज समझ में आई? Yes, no folks. श्रवास्ता शुक्ला को समझ में आ रहा है क्या? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? This is something which is not given in your readings, folks. आपको रीडिंग में मिलेगा भी नहीं, और जानबूझ के नहीं मिलेगा, कंफ्यूज करने के लिए बनाई हुई है रीडिंग। रीडिंग को पढ़ोगे सर पकड़ लोगे कि लिखा क्या हुआ है, क्यों इंजीनियरिंग के एग्जाम्पल दे रखे हैं। अभी मैं आपको रीडिंग में दिखाऊंगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा किसी को है डाउट? डल क्यों है क्लास? एग्जाम देके थक गए हो? लेट्स सो बेसिकली मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें ही मेंशन करी हुई हैं। दैट सपोज यू आर अज्यूमिंग, मैंने एस्टिमेट कर रहा हूँ कि वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज। नाउ मैंने म्यू को 50 अज्यूम किया एंड हमने सैंपल से हमने कंफर्म करने की कोशिश करी है, और सैंपल से क्या कंफर्मेशन आएगी कि वेदर यू विल एक्सेप्ट दिस हाइपोथेसिस, और एक्सेप्ट की बजाय हम क्या लिखते हैं, वी से आई डू नॉट रिजेक्ट माई हाइपोथेसिस, और इफ इट डज नॉट कंफर्म टू दिस हाइपोथेसिस देन आई से दैट आई रिजेक्ट माई नल। तो यू विल मेक एन अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन। से वो म्यू भी हो सकता है और आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि वो सिग्मा भी हो सकता है। तो हम किसी के बारे में भी अजम्पशन ले सकते हैं और उसको हम कह रहे हैं हमने थीटा अज्यूम किया है, और नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी वेदर यू रिजेक्ट थीटा और यू डू नॉट रिजेक्ट थीटा, एंड दिस हैज टू बी बेस्ड ऑन द एविडेंस फ्रॉम द सैंपल। नाउ null hypothesis is what the theory says, there is no change status के उस सबको हम null hypothesis बोलते हैं, और alternative hypothesis होता है researchers hypothesis, what you are trying to prove. Now अब लीगल केस का मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया कि लीगल केस का एग्जांपल क्या है। अब मेथड्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो होते हैं वो 3 तरीके के मेथड्स होते हैं। व्हाट आर दीज 3 मेथड्स? मैंने एक ही साथ सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। लेट्स सी दीज 3 मेथड्स। पहला मेथड क्या है? कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्रोच। दिस यू हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस चैप्टर, बट लेट मी एलैबोरेट हियर। अब z की जो वैल्यूज होती हैं, z की वैल्यूज जो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर ये z की वैल्यूज मिल जाएंगी कि योर z टेबल जो है, इफ यू सी योर z टेबल यू विल सी कि z की टेबल जो है उसके अंदर हम लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइंग बिटवीन माइनस अल्फा z टू z प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा। तो अगर आप इसकी 95% प्रोबेबिलिटी देखोगे तो बेसिकली अगर आप देख रहे हो z की टेबल बना रहे हो और देख रहे हो कि यहाँ पर 2.5% एरिया है और यहाँ पर 2.5% एरिया है, ठीक है, तो बेसिकली बीच का जो एरिया है वो 95% है। अगर आप ये देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी है z की वैल्यू ये वाली कौन सी है, ये z की वैल्यू है -1.645 या माइनस क्या है 95 है, और टू टेल में 1.96 माइनस ये -1.96z और प्लस 1.96z के अंदर जो ऑब्जर्वेशन हैं ये 95, ये जो z की वैल्यूज हैं ये 95 है। ठीक है, 95% ऑफ z वैल्यूज विल लाई इन बिटवीन दिस रेंज। ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल टू 95%। तो ये जो z की वैल्यू थी ये क्या थी? z अल्फा बेसिकली 5 डिवाइडेड बाई, इसमें इस केस में अल्फा कितना था? इस केस में अल्फा था 5%। 5% इज बेसिकली दी कि 5% वाला जो एरिया वो रिजेक्शन रीजन है, और क्योंकि वो डिवाइडेड 5% है 2 पार्ट्स के अंदर, अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2, तो ये z आपका
0.025 पे देखोगे और z प्लस 025 पे वैल्यू देखोगे तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 1.96 और माइनस 1.96। तो इनके बीच का जो एरिया है वो 95% एरिया है। अगर अगर आप इस तरीके से चलते हो तो यू विल, और हमारी इस केस में हमारी z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू हमें पता है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, यही पता है हमें। एंड हमें पता है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं, p की वैल्यू माइनस z अल्फा बाई 2 या अल्फा, अगर आप अल्फा ले लेते हो तो माइनस z अल्फा, क्योंकि अल्फा बाई 2 इसलिए क्योंकि आप वो देख रहे हो, क्या कहते हैं, टू टेल्ड एस देख रहे हो, बिटवीन z एंड z प्लस 2 प्लस अल्फा बाई 2 इज माइनस 1 बाई अल्फा। अब आप ये वाली वैल्यू डाल दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स बार माइनस म्यू अपॉन ऐसी ये, ठीक है। अब आप इसके अंदर जब when you will see this, माइनस होना चाहिए था, माइनस जी अल्फा बाई 2, माइनस जी अल्फा बाई 2। अब इसके साथ आप क्या कर सकते हो, इसके साथ अगर अब आप व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट रिप्लेस ऑल ऑफ दिस सो दैट बीच में सिर्फ म्यू आ जाए और दिस विल बिकम जी अल्फा, दिस विल बिकम एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 इंटू स्टैंडर्ड एरर बाई एक्स बार, और ये हो जाएगा प्लस जी प्लस एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार। तो ये जो है, ये जो प्रोबेबिलिटी है, दिस इज अगेन 1 माइनस अल्फा। तो अब आपने क्या करा, थ्रू दिस यू हैव क्रिएटेड एन इंटरवल फॉर म्यू। अगर ये म्यू है तो आपका लोअर लिमिट जो है वो आ जाएगा एक्स बार माइनस जी अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ एक्स बार, और ये हो जाएगा एक्स बार प्लस जी अल्फा बाई 2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ, ठीक है। ये आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ गई। अभी एक्सप्लेन करता हूँ, अभी सिर्फ ये समझो, उसके बाद मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा। अब हमारे पास व्हाट यू हैव इज यू हैव अ लोअर लिमिट एंड यू हैव अ अपर लिमिट, और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा एक तो एक्स बार के ऊपर, ठीक है, और एक्स बार से आप ये वैल्यू पुट कर दोगे और फिर आप देखोगे कि आपका ये स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है और आप कितना परसेंटेज ऑब्जर्वेशन का जो है वो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कितना ले रहे हो। इन तीनों पे आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद अब आप देखोगे कि व्हाट इज योर, जो आपके पास जो सैंपल से वैल्यू आई है एक्स बार, वो कहाँ लाई कर रही है। अगर वो इससे बाहर लाई कर रही है या इसके यहाँ लाई कर रही है, in that case you will reject your null hypothesis and you will say that my sample is telling me a separate story from what I have hypothesized, and this exactly what I have written is here। अगर आप देखोगे तो you will see this only, ये lower limit या upper limit, and we get x bar from the sample, we calculate your standard error of x bar and we compare this standard error जो हमारे पास आया, हम बस सिंपल कंपेयर करते हैं कि इस रेंज से बाहर है हमारा जो सैंपल की जो वैल्यू आ रही है तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, उस रेंज के बीच में तो वी डू नॉट रिजेक्ट। दूसरा तरीका इज कॉल्ड एज टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम कंप्यूट करते हैं। अब टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच देखो, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस अप्रोच में मैंने क्या किया, मैंने z की वैल्यू कंप्यूटेड निकाली, कंप्यूटेड z की वैल्यू कैसे निकलेगी, x बार मुझे सैंपल से मिल गया माइनस म्यू, ये मैंने हाइपोथेसाइज करा था, ये मुझे कहाँ से मिला, नल हाइपोथेसिस से, ठीक है, अपॉन वेरिएंस, आई एम अज्यूमिंग कि मुझे वेरिएंस दे रखा होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन दे रखा होगा, आई एम अज्यूमिंग दिस, एंड अंडर रूट n मुझे नंबर ऑफ सैंपल्स है, ये भी मुझे दे रखा होगा, नंबर ऑफ सैंपल, सॉरी सैंपल साइज मुझे पता होगा। तो सैंपल साइज मुझे पता चल गया, मुझे ये सारी ऑब्जर्वेशंस पता चल गई, तो उससे मैंने z की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, मैंने z की वैल्यू निकाल ली। अब z की वैल्यू निकाली और फिर साथ में मुझे पता है कि इस z की वैल्यू जो है, हमने यही सारी चीजें यहां पर करी, हमने एक z की वैल्यू निकाली। अब वो जो z की वैल्यू आ रही है आपकी, वो कितनी आ रही है, अब मुझे ये पता है कि z की वैल्यू एट 1.96 एट से z की वैल्यू मुझे पता है कि z की वैल्यू एट 1.96 कितनी है, और यहाँ पे मुझे पता है कि ये माइनस 1.96 वैल्यू है z की, ठीक है, ये मेरी लिमिट्स हैं। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी इज दिस वैल्यू ऑफ z दैट आई एम गेटिंग
इज इट बियॉन्ड दिस और इज इट लेस देन दिस, और यही हम यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि जो कंप्यूटेड z आया है और जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये आप अज्यूम करके या तो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, सपोज वो कहते हैं 90% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 90% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ अ टू टेल टेस्ट इज z की वैल्यू नॉट 90%, 95% लेवल क्या हो जाएगा, z की वैल्यू -1.96 और +1.96। अब जो आपने z कंप्यूट किया है उसकी वैल्यू अगर से आ रही है 2.3, तो उसकी वैल्यू यहां पर कहीं पे आ गई, तो 2.3 आ गई तो वो रिजेक्शन रीजन के अंदर आ गई, या -2.1 आ गई तो वो रिजेक्शन रीजन में आ गई, तो आप रिजेक्ट कर दोगे नल, नहीं तो आप नहीं रिजेक्ट करोगे। सो दिस इज कॉल्ड एज कि आप यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ z, यू आर ट्राइंग टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ z विद द कंप्यूटेड वैल्यू। तो अगर आपका अभी मैं वो टेबल दिखा दूंगा, उस टेबल के अंदर आपकी अगर z की वैल्यू उस एरिया में आ रही है, तो अगर आपका z कंप्यूटेड का मॉड्यूलस इज मोर देन z का अगर जो आपका ये वाला है क्या कहते हैं जो क्रिटिकल z है, ठीक है, जो आपका क्या कहते हैं जो आपका एंड में जो आपका 1.96 या 1.64 या 2 टेल टेस्ट के अंदर या 1 टेल टेस्ट के अंदर जो क्रिटिकल कट ऑफ z है उससे ज्यादा है, देन इन दैट केस यू विल रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट योर H0। और वो उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप क्या ले रहे थे, आप कह रहे थे z का मतलब 1.96 का मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि x बार जो है और म्यू जो है वो आपस में एक दूसरे से 1.96 क्या कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स दूर हो सकते हैं, उससे ज्यादा अगर स्टैंडर्ड यूनिट्स दूर हो जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि यार सैंपल कोई और चीज बता रहा है और पॉपुलेशन जो मैंने अज्यूम किया वो कुछ और चीज है। 1.96 मतलब दिस इज द लेवल ऑफ डिफरेंस दैट इज एक्सेप्टेबल टू यू, एनीथिंग मोर देन दिस इज यू आर गोइंग टू रिजेक्ट, ठीक है। दिस इज द बेसिकली द लेवल ऑफ बेसिकली एक्सेप्टेंस फॉर यू, बियॉन्ड दैट विल बी द लेवल ऑफ रिजेक्शन। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये वाला रीजन के अंदर आएगा तो एक्सेप्ट कर लोगे, ये वाला रीजन के अंदर आएगा तो आप एक्सेप्ट कर लोगे या डू नॉट रिजेक्ट करोगे इस वाले रीजन के अंदर, और इसके बाहर वाले रीजन के अंदर यू विल रिजेक्ट योर नल, इस वाले रीजन के अंदर यू विल रिजेक्ट योर नल। तो ये दूसरा तरीका देखने का। नाउ लेट मी टीच यू द थर्ड वे विच इज कॉल्ड एज p वैल्यू। नाउ व्हाट इज दिस p वैल्यू, और ये आपके 1 जब आप देखोगे 8.5 या 8.4 तो उसके अंदर आपको वो मिल जाएगी, ये वाली चीज भी मिल जाएगी। व्हाट इज दिस p वैल्यू। नाउ p वैल्यू क्या होती है, सपोज मैंने क्या करा, मेरे पास जो कंप्यूटेड जो मेरी z की कंप्यूटेड वैल्यू आई, मैंने कंप्यूट किया z x बार माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड एरर ऑफ x बार, मैंने ये कंप्यूट किया और ये वैल्यू आ गई 2.5। अब मैं z की टेबल में जाऊंगा, मैं z की टेबल में I will start searching what for the level of significance that I want to see, I will start searching कि z की वैल्यू जो है वो 2.5 I will see कि ये z की वैल्यू 2.5 जो है वो कहाँ आ रही है, उस t की उस z की वैल्यू के लिए यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है z की, तो आपके पास कुछ आएगी कि 2.5 के लिए आपके पास जो वैल्यू z की आएगी वो आएगी से समथिंग अराउंड 2, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी नहीं इस तरीके से नहीं, आपकी जो z की वैल्यू होगी वो हो जाएगी आपके पास आया 2.50। आपने z की वैल्यू यहाँ से चेक करी, मैं आपको z की टेबल दिखा देता हूँ, उस z की टेबल दिखा देता हूँ 2.5। ये देखो मैंने z की वैल्यू क्या करी, मैंने आपको z की वैल्यू बताया कि z की वैल्यू मुझे क्या चाहिए 2.5, तो मैंने z की वैल्यू 2.5 में क्या देखा, मैंने z की वैल्यू यहाँ गया 2.50, ये मुझे मिल गई 0.9938। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर आप z की वैल्यू लोगे और यहाँ पर लोगे z की वैल्यू 2.5, तो ये वाला जो सारा एरिया है, ये वाला सारा एरिया आ जाएगा 0.9938। और अगर आप इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आप बेसिकली कह रहे हो कि ये z की वैल्यू ये वाली वैल्यू है, ये जो वैल्यू ये जितना एरिया रह गया है वो आ जाएगा 0.01 से 62, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो व्हाट यू विल गेट इज, तो z की वैल्यू क्या हुई, z की वैल्यू इससे ज्यादा
इससे ज्यादा हम यही कहते हैं ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5, यही हम बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 विल बी 0.162, बेसिकली 1.6%। दिस वैल्यू, ये जो आपने वैल्यू निकाली 0.0162, ये जो आपने वैल्यू निकाली, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली 1 माइनस 0.9938। जब आप ये निकालोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 0.1632। तो ये जो 0.1632 ये जो वैल्यू आई, दिस इज कॉल्ड एज पी वैल्यू। अब इसको समझने की कोशिश करो कि क्या हुआ। ठीक है, अभी तो हमने पी की वैल्यू निकाली, नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू कि हुआ क्या। आपने जी की टेबल बनाई, आपने कहा कि ये जी 0 है। ठीक है, आपने कहा कि मैं जो रिजेक्ट करूंगा मैं 5% पे रिजेक्ट कर दूंगा। 5% पे रिजेक्ट करने का मतलब आपने कहा कि ये वाला जो एरिया होगा, ये वाला, अगर मैं राइट टेल टेस्ट लूँ तो ये वाला एरिया 95% होना चाहिए, ये वाला जो रिजेक्शन वाला रीजन होना चाहिए ये 5% होना चाहिए। ठीक है, और इसी का मतलब होता है कि अगर ये वन टेल टेस्ट है तो इसका मतलब हो गया कि z की वैल्यू ग्रेटर देन 1.64 मीन्स कि ये जो एरिया है ये सिर्फ 5% है, उससे कम वाला जो एरिया है वो सारा क्या कहते हैं 95% है। दिस इज हाउ यू गेट z की ये वैल्यू। अब आपको पता है कि z की वैल्यू एट 1.64 इज 5%, तो z की वैल्यू एट 2.5 कितनी होगी? 2.5 पे जो z की वैल्यू आ रही है वो ये वाला एरिया आ रहा है, ये 5% और ये कितना परसेंट कह रहे हैं? हम कह रहे थे 1.62%। तो इजंट दिस कमिंग अंडर इन द रिजेक्शन रीजन? तो एनी वैल्यू ऑफ कंप्यूटेड z, मतलब कंप्यूटेड z के अकॉर्डिंग जब आप एरिया चेक बनाओगे, कंप्यूटेड z के अकॉर्डिंग जब आप एरिया देखोगे उसका, इफ दैट एरिया इज लेस देन अल्फा, मतलब विच इज 5%, अब ये 1.64 कितना है, इज लेस देन 5%, तो यू विल रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू अगेन। आपने कहा कि आपने ये बोला कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है उस डिस्ट्रीब्यूशन में हम 5% से बाद का जो एरिया है उसको हम रिजेक्शन रीजन के अंदर डालेंगे, और जो आपकी z के अकॉर्डिंग, जो आपके कंप्यूटेड z के अकॉर्डिंग जो एरिया आ रहा है, द एरिया दैट यू आर गेटिंग अकॉर्डिंग टू द कंप्यूटेड z इज 1.64। तो ये आपका z की वैल्यू 2.5 के अकॉर्डिंग आ रही है और आपकी जो एक्सेप्टेबल वैल्यू थी वो 6.14 थी। So therefore you will reject your null hypothesis based on this. So, or what is this p value? This p value is nothing but, p value is also called as observed level of significance. Now what is this observed level of significance? Acceptable level of significance था 5%. Observed क्या हुआ? जो आपने z से वैल्यू निकाली, जो आपने z कंप्यूट किया by x bar minus mu upon standard error of x bar, once you have computed this and you have checked the area by this, that means ये जो computed z है आपने उसका एरिया देखा है। computed z का जब आपने एरिया देखा है greater than equal to say z, जब आपने ये एरिया देखा है, this area is nothing but p value जो आएगी, जो इस केस में 1.64 आई थी। तो आपको कुछ नहीं करना, जो भी आपकी z की वैल्यू कंप्यूट करी है आपने बस जाके z की टेबल में जाके चेक कर लेना है कि उसके अकॉर्डिंग कितना एरिया बन रहा है, और बेसिकली 1 माइनस दैट करना है, क्योंकि अगर आपकी z की वैल्यू पूरी क्यूमुलेटेड दे रखी है तो उस तरीके से देखना है आपको। कई बार z टेबल अलग अलग तरीके से रखी होती हैं, तो जो टेबल अभी मैंने आपको दिखाई उसमें आपको बस 1 माइनस एरिया करना है, 1 माइनस जो भी एरिया दे रखा है, जैसे इस केस में 1 माइनस 0.9932 था, हमने वो करना था एंड यू गॉट द वैल्यू 0.01668 या जो भी था वो आपके आ गई। सो विच इज बेसिकली, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आई वो आपकी आई 1.68%। आपकी जो z की वैल्यू आई है अकॉर्डिंग टू दैट ग्रेटर देन एरिया इज 1.68%, बट जो आपको पास जो एक्सेप्टेबल लेवल था वो 5% का था, तो आपका उससे कम आया, तो यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो रिमेंबर दिस दैट, एंड फिर मुझे बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इफ p value is greater than alpha, then greater than equal to alpha, is greater than alpha, so you will not reject null, and if p value is less than equal to alpha, you will reject null. This is how you will go about this.
अब किस किस को ये चीज जो है ये समझ में आई है, किस किस को ये चीज समझ नहीं आई है? चल मी दिस, ये चीज समझ में आई पी वैल्यू, क्योंकि ये पी वैल्यू आपको अभी भी नहीं पूरे अब इसके बाद पूरी जिंदगी आपको परेशान करेगी अगर आपको जी की ये चीज समझ नहीं आई। जी ये पी वैल्यू, बिकॉज पी वैल्यू इज द ओनली थिंग दैट यू विल सी इन ऑल डेटा साइंस। सारी डेटा साइंस में सिर्फ पी वैल्यू देखते हो। एंड अल्टीमेटली, अच्छा आई विल एक्सप्लेन पी वैल्यू अगेन। एंड अल्टीमेटली जितना भी आप इकोनोमेट्रिक्स करोगे, जितने भी आप रिसर्च करोगे, जो आप मास्टर्स में करोगे, मेन चीज जो आप देखोगे वह सिर्फ पी वैल्यू देखोगे। इसलिए पी का कंसेप्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और किसको समझ नहीं आया? आई एम नॉट श्योर कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पी वैल्यू अगेन कि व्हाट इज दिस पी वैल्यू। ट्राई टू सी दिस। हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन बना, हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, ये जी की वैल्यू 0। फिर उसके बाद हम क्या सेट करते हैं? उसके बाद हम रिजेक्शन रीजन सेट करते हैं। रिजेक्शन रीजन कैसे सेट करते हैं? हम कहते हैं कि मेरी, अगर मैं राइट टेल टेस्ट लेता हूँ तो राइट टेल टेस्ट के अंदर अगर मैं बोलता हूँ कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल चाहिए या 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे देखना है, तो मुझे क्या पता है 95% पे जी की वैल्यू एट 1.64 से ज़्यादा अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास जो एरिया आएगा वो आएगा 5। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी की वैल्यू 1.6, कैन यू सी, या 1.65 देख लो। कैन यू सी कि इनके बीच में ये क्या लिख रहा है? ये बेसिकली मुझे बोल रहा है कि z की वैल्यू, और ये देखो फॉर्मूला भी यही लिखा हुआ है, z की वैल्यू ये बता रहा है मुझे z की वैल्यू एट लेस देन इक्वल टू दिस z। अगर ये z की वैल्यू मैंने ली है 1.64, अगर 1.64 लूंगा या 1.645 लूंगा तो ये वाला जो सारा एरिया है वो कितना है, कितना बता रहा है? 95%। ये वाला एरिया सारा है 95%। तो ये वाला जो बचा वाला एरिया कितना हो गया? बचा वाला एरिया हो गया 5% का। और अगर मैं यही चीज़ टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे पता चल गया 1.64 के ये वाला जो एरिया आया, ये वाला जो रीजन आया, दिस रीजन इज बेसिकली 95%, और ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, दिस इज 5। अब मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि मैं अगर मेरी z की वैल्यू 1.64 से ज़्यादा होगी तो मैं इन एनी केस ही रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है, वो तो मैं सिंपल देख सकता हूँ, बट कई बार आप वो भी नहीं देखते। आप सिंपल देखते हो कि मेरी पी वैल्यू कितनी है। ठीक है, आप सिंपल पी वैल्यू देखने की कोशिश करते हो। अब वो व्हाट इज दिस पी वैल्यू? आपने z कंप्यूट किया, आपने z कंप्यूट किया। z आपने कंप्यूट कैसे किया? आपने कंप्यूट किया z x बार माइनस म्यू अपॉन SCX। ठीक है, आपने ये कंप्यूट किया। इसको कंप्यूट करने के बाद आपकी वैल्यू जो z की आई वो आई आपकी 2.5। तो व्हाट विल यू डू? यू विल गो टू योर z टेबल एंड सी 2.5 पे कितना एरिया कवर होता है। 2.5 पे जो एरिया कवर होता है वो कितना होता है? देखो 2.5 पे जो एरिया कवर हो रहा है वो बता रहा है मुझे कि अगर z की वैल्यू 2.5 है तो इसका इतना वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो कितना है? 99.38। तो बचा कितना? तो अगर 1 माइनस 99.38 कर लोगे तो कितना बचेगा? जो बचेगा, जो एरिया बच जाएगा वो 1% से भी कम है। वो बेसिकली कितना है? 0.06062 ये वाला बचा। तो ये वाला जो आपका एरिया हो गया, ये सिर्फ इतना एरिया बच गया 0.62% वाला। ये जो एरिया बचा वो बचा 0.62। आपको एक्सेप्टेबल कितना था? अब यहाँ जाके देखो, आपको एक्सेप्टेबल कितना था? 5% का। बट जो वैल्यू आई है z की, जो वैल्यू आ गई है z की, वो कितनी आई है? वो उसके अकॉर्डिंग जो एरिया आया है वो आया है आपका 0.62। तो इजंट दिस, जो आपने z की वैल्यू कैलकुलेट करी उसके अकॉर्डिंग आप एरिया चेक करते हो कि कितना एरिया उसके राइट में है। तो उसके अकॉर्डिंग कितना एरिया उसके राइट में है वो सिर्फ 0.62% है। आपने मैक्सिमम जो आपको वैल्यू एक्सेप्टेड थी वो 5% थी। इफ एंड दिस वैल्यू ऑफ 0.62 इज कॉल्ड एज पी वैल्यू, क्योंकि ये आपका है ऑब्जर्व, जो आपकी ऑब्जर्वेशन आई है उसके अकॉर्डिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आया है। दिस वाज द एक्सेप्टेड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपकी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आई है वो कम आई है फ्रॉम क्या कहते हैं, जो ऑब्जर्व लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो कम आई है एज कंपेयर टू व्हाट वाज एक्सेप्टेबल। तो उस केस में यू विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सो इफ योर पी वैल्यू इस केस में 0.62 इज लेस देन 5,
you will reject your null, और वो rejection of null तभी होगा जब z की वैल्यू बहुत ज्यादा है, which means सैंपल से जो मीन आ रहा है, सैंपल का मीन यहाँ पर आ रहा है और जो आपने अज्यूम किया वो यहाँ पर है, वो दोनों बहुत दूर हैं, इसलिए आप रिजेक्ट कर दोगे नल हाइपोथेसिस p वैल्यू. सो this is the other concept. Now if you see all of this, now ये मैंने यहाँ पर दिखा हुआ कि ये आपका जो कंप्यूटेड z है, इफ दिस इज ग्रेटर दैन, अगर आपका जो कंप्यूटेड z है वो ग्रेटर दैन अल्फा है, तो आप सीधा ही कह दोगे कि आई डू नॉट रिजेक्ट माई नल, और अगर वो उसके लेस है तो यू विल रिजेक्ट योर नल. तो कंप्यूटेड जो कंप्यूटेड एरिया अगर आप निकालोगे z के अकॉर्डिंग, दैट विल बी योर लेवल ऑफ significance, observed level of significance, which is called as p value. So let's now see this. और by the way, अगर आप टू टेल टेस्ट के अंदर हो तो जो भी आपकी p की वैल्यू आएगी उसको आपको 2 टाइम्स करना है, ठीक है. जो भी अगर आप टू टेल टेस्ट में हो तो आपको p की वैल्यू को 2 टाइम्स करना है, क्योंकि दोनों जगह का एरिया आप ऐड करोगे, लेफ्ट टेल का भी ऐड करोगे और राइट टेल का भी ऐड करोगे. नाउ देन एरर्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. एरर्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ true hypothesis is basically alpha, and probability of not क्या कहते हैं of not rejecting a false hypothesis is beta. ये मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया था. And why is this error? This error is कि आपने null hypothesis assume किया कि गार्गी कॉलेज का बच्चों का जो CGPA है वो 7.5 है, बट आपने क्या किया, आपने फ्रंट बेंच के वाले जो बच्चे हैं उनका CGPA पूछना शुरू कर दिया एज अ सैंपल, और उनका CGPA बहुत ज़्यादा हाई आ गया. उनका CGPA आ गया 9 जो आपने सैंपल लिया, और जो आपने अज्यूम किया था वो 7.5 था, क्योंकि 9 बहुत दूर है 7.5 से, ये सैंपल से डेटा आया, ये आपने अज्यूम किया था. तो आप और कट ऑफ मान लो आपकी 8 थी, तो यू विल रिजेक्ट योर नल हाइपोथेसिस. बट एक्चुअली में क्योंकि आपका बायस सैंपल था, रियलिटी में क्या है, रियलिटी में हो सकता है कि एक्चुअल पॉपुलेशन के अंदर ये पास में ही होना था. तो आपका जो नल हाइपोथेसिस था वो ट्रू था, ये एक्चुअली में ट्रू था, बट क्योंकि आपका सैंपल जो था वो बायस था, इसलिए आपने रिजेक्ट कर दिया, एंड दैट इज एन एरर. तो दैट इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा, और वही आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा भी होता है. एंड देन यू हैव बीटा. बीटा के केस में क्या है, बीटा के केस में आपका जो वैल्यू आपने जो अज्यूम की थी, आपने अज्यूम करी 7.5, ये आपकी अजम्पशन थी. आपकी सैंपल से क्या आई, सैंपल से आपकी आई 7.7, तो सैंपल से आपकी आ गई, आपने ऑन द बेसिस ऑफ दिस आपने कहा आई डू नॉट रिजेक्ट. बट रियलिटी क्या थी, रियलिटी में ये एक गलत सैंपल था. रियलिटी में जो आपका एवरेज था वो 9.5 था, तो आपने डू नॉट रिजेक्ट माय नल कह दिया, जबकि एक्चुअली में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाज ट्रू, या फिर नल हाइपोथेसिस जो था वो फॉल्स था. So when null hypothesis is false and you end up not rejecting it, that is called as beta. ठीक है, that is called as type 2 error. ठीक है, इसको आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि what is this. एंड देन उसके बाद मैंने डिसीजन मेकिंग आपको वो टूल यहाँ पर दे दिया. डिसीजन मेकिंग टूल क्या है कि क्या कहते हैं, आपने अगर किया रिजेक्ट नल और आपका जो नल था वो एक्चुअली में ट्रू था, तो वो टाइप 1 एरर है. और अगर आपने बिल्कुल ठीक से कर दिया, यू रिजेक्टेड योर नल एंड नल वाज फॉल्स, तो वो करेक्ट डिसीजन है. और यहाँ पर यू डू नॉट रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस और वो एक्चुअली में भी ट्रू था, तो दैट इज करेक्ट डिसीजन. एंड फाइनली you do not reject null hypothesis when the hypothesis was false is a type 2 error. So this is how you are basically defining these 4 kinds of problems. Let's move on to testing of proportions. अब हमने बाकी सारी चीजें तो बड़ी सिंपल से समझ ली, ठीक है. अब मैं आपको प्रोपोर्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज दिस प्रोपोर्शन. नाउ सपोज आप क्या करना चाहते हो, आप किसी पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहते हो, ठीक है, कि पॉपुलेशन के अंदर कोई कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं है. फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि एक पूरी पॉपुलेशन में कितने डिफेक्टिव, मेरे पास फैक्ट्री है, मैं देखना चाहता हूँ इसमें डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं. तो डिफेक्टिव बल्ब मेरे लिए एक सक्सेस हो जाएगा. थिंक ऑफ बाइनोमियल के टर्म में कि सक्सेस और फेलियर. मैं देखना चाहता हूँ क्लास में कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मैं देखना चाहता हूँ, तो इसमें इंटेलिजेंट बच्चे, नंबर ऑफ इंटेलिजेंट बच्चे मेरा सक्सेस हो गया. मैं देखना चाहता हूँ अगर मैं गाड़ी को क्रैश करता हूँ, ठीक है, 10 मील की स्पीड पे अगर गाड़ी को लेके जाता हूँ और क्रैश करता हूँ, तो उस केस में कितनी गाड़ियों में डैमेज हो रहा है, कितनी गाड़ियों में डैमेज नहीं हो रहा. तो उस केस में नंबर ऑफ कार्स विच आर डैमेज्ड इज बेसिकली माय सक्सेस. तो बेसिकली व्हाट यू सी इज यू ट्राई टू डिवाइड द पॉपुलेशन
प्रोपोर्शन इनटू टू वेज हो सकता है, बाइनोमियल भी कर सकते हो, पॉलिनोमियल भी कर सकते हो, बट अभी हम बाइनोमियल के केसेस में बात करते हैं कि या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। अब अगर कोई हमें पता चल जाता है कि इफ द एट्रीब्यूट इज देयर इन द पॉपुलेशन, if you have n units in the population and a have the characteristic, तो basically p क्या है, p is defining you a upon n। a वो हैं जिनके अंदर characteristic है और n वो है कि number of units population में कितने हैं। आपकी क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं और उसमें से 10 बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट हैं, तो मेरा p की वैल्यू आ गई कि 1/5, which is basically I can say my p is 0.20। this is my probability of success in this case। now I say, अब मैं उसके बाद क्या करता हूँ, अब मैंने एक सैंपल लिया, ठीक है, और Q क्या होगा, Q इस केस में P 1 - P इज इक्वल टू Q, तो Q हो जाएगा 90%, नहीं ये तो 20% था ना, तो 80% हो जाएगा। सो ये मैंने इस तरीके से P और Q डिफाइन किया। अब मेरे पास क्या है, अब मैंने एक सैंपल लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम करना क्या चाहते हैं। हम पॉपुलेशन के अंदर प्रोपोर्शन चेक करने की कोशिश करते हैं कि पॉपुलेशन में कितने लोग होंगे। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूं कि दिल्ली में कितने लोग बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। वोट या तो वोट करना, मैं कहता हूं कि बीजेपी को वोट करना इज अ सक्सेस फॉर मी। तो आई गो एंड सी, आई स्टार्ट टू सी कि नंबर ऑफ पीपल हु वुड लाइक टू सी बीजेपी इन पावर। तो अगर मैंने कुछ लोगों का सैंपल लिया और कुछ लोगों के सैंपल के बेसिस पे मैं पॉपुलेशन का जो P है वो प्रोपोर्शन है वो डिटरमिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने सैंपल लिया, मैंने अपने एरिया में कुछ लोगों से पूछा कि डू यू लाइक बीजेपी और नॉट। उसमें से X लोगों ने कहा वी लाइक बीजेपी, ठीक है। तो बेसिकली प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस जो हो जाएगा वो हमारा ये हो गया, जो हमारा जो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेस जो सैंपल से आया स्मॉल p और Q हो जाएगा अनसक्सेसफुल। अब यहां पर क्या है, सपोज इफ n इज लार्ज, बेसिकली अगर हमारा जो पॉपुलेशन है, जैसे इंडिया का पॉपुलेशन तो बहुत बड़ा है, इफ n इज लार्ज देन इन दैट केस, इफ n इज लार्ज देन x, द रैंडम वेरिएबल x, द नंबर ऑफ सक्सेस हैज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे डिफाइंड होता है, इट्स डिफाइंड बाय n एंड p, ठीक है। n और p के लिए डिफाइंड होता है, वेयर p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। Now, if n into p is greater than 10 and n into q is greater than 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये दोनों greater than 10 है, then in that case जो हमारा एस्टिमेटर ऑफ p है, बेसिकली p hat से हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, स्मॉल p से एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं बिग p को, हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने कहा कि अगर n into p जो है if it is large enough, और n into q जो है if it is large enough, then जो हमने सैंपल से जो p एस्टिमेट किया है दिस हैज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड किसी भी चीज का अगर हमें पता है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। तो इफ वी नो दैट द एस्टिमेटर p हैट या स्मॉल p जिसको हम बोल रहे थे, स्मॉल p is an unbiased estimate of p as a normal distribution with this as this, and the variance will be, variance उसका क्या होगा, variance होगा p into q by n, ठीक है। यूजली जब आप वेरिएंस देखते हो तो वेरिएंस आपको दिखाई दे जाएगा कि वेरिएंस क्या होता है बाइनोमियल के केस में। वेरिएंस इन केस ऑफ अ बाइनोमियल इफ यू रिमेंबर इट इज n into p into q, ठीक है, npq। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा कि जो वेरिएंस ऑफ p हैट होगा वो वेरिएंस ऑफ p हैट जो हो जाएगा p और p into q अपॉन n होगा। आपको स्टेज पे आपको इस तरह याद कर लेना चाहिए। later on if you want I can also show you the proof for this particular fact as well। तो आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि हमारा जो p जो है जिससे हम एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसका जो मीन है वो हो जाएगा क्या कहते हैं जिसको हम एस्टिमेट करने वो p जो हमारे पास सैंपल से आया, और उसका जो वेरिएंस होगा वो होगा p into q अपॉन n। अब आपके पास वेरिएंस है, आपके पास वो है, आप इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। स्टैंडर्डाइज कैसे करोगे, कंप्यूट कैसे करोगे, z को ये जो सैंपल से आया माइनस जो आप हाइपोथेसाइज करोगे। मैंने कहा कि इंडिया के अंदर 70% लोग बीजेपी को लाइक करते हैं, तो आई एम सेइंग कि p इज इक्वल टू, माय हाइपोथेसिस इज p इज इक्वल टू 0.7। मेरे पास दिल्ली की पॉपुलेशन से आया p इज इक्वल टू 0.6, तो आई एम गोइंग टू सी कि 0.6 माइनस 0.7 इंटू ये p
इंटू क्यू, बेसिकली यहाँ पर आपका हो गया 0.7 इंटू 0.3 अपॉन एन, नंबर ऑफ कितने कितने मैंने सैंपल में लोग लिए थे. आई विल जस्ट फाइंड दिस वैल्यू, और अगर ये वैल्यू जो है मेरी z की जो क्रिटिकल वैल्यू उससे ज्यादा है तो आई विल रिजेक्ट माय नल, अदरवाइज आई विल नॉट. वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है इस केस में. अगर आपको, मैंने इसलिए कहा ना, जो मैंने फंडामेंटल समझाया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इफ यू नो दिस, ऑल यू नीड टू डू इज टू थ्री थिंग्स. आपको बस P, आपको अपनी Z की वैल्यू निकालनी है. Z की वैल्यू कैसे निकालोगे? P नॉट जो सैंपल से आया, सैंपल से कैसे आएगा? P नॉट विल बी इक्वल टू x अपॉन n. कितने सक्सेस हैं सैंपल के अंदर अपॉन सैंपल के कितने आपने लोगों से पूछा बीजेपी के बारे में. और फिर उसके बाद सॉरी, ये तो आपका आया, हाँ इसको आप ले लो P हैट, ये तो आया सैंपल से. P नॉट हो जाएगा जो आपने हाइपोथेसिस लिया है. हाइपोथेसिस में मैंने बोला कि बीजेपी को 70% लोग लाइक करते हैं, तो माइनस P नॉट, ये मैंने अपना वो लिया, इसको P हैट ही कर दो, और अपॉन अल्टीमेटली नीचे क्या होता है? स्टैंडर्ड एरर होता है. स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? P अपॉन, बेसिकली स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन. बेसिकली ये स्टैंडर्ड डिविएशन लूंगा. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? P नॉट इंटू क्यू नॉट अपॉन एन. ये हम ये करेंगे. सो इफ यू सी दिस, यही हमने यहाँ पर ये करा, सेम चीज. ठीक है, वेरिएंस हमारा था P इंटू क्यू अपॉन एन, तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ये हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग, ये हम अपना कंप्यूट करेंगे. दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट दिस. दिस इज कंप्यूटेड Z, एंड यू विल जस्ट कंपेयर इट टू जो आपका क्रिटिकल Z है, जो आपका Z आपकी जो लिमिट्स हैं. सपोज दिस Z इज इक्वल टू से 1.2, और जो आपका एक्सेप्टेबल लेवल था वो 1.96 था. तो 1.96 यहाँ पर था, और आपका जो आया है वो 1.2 आया. तो यू विल से आई विल नॉट रिजेक्ट माई नल हाइपोथेसिस. बेसिकली जो मैंने अज्यूम किया था कि 70% लोग जो बीजेपी को लाइक करते हैं, वही मुझे सैंपल भी बता रहा है. बट अगर आपका ये Z की वैल्यू बहुत ज्यादा डिफरेंट आ जाती है, तो उस केस में आप बोलोगे कि नहीं, जो मैंने अज्यूम किया था वो गलत था, ज्यादा लोग लाइक करते हैं या कम लोग लाइक करते हैं, वो आपका आ जाएगा. दिस इज हाउ यू चेक फॉर प्रोपोर्शन. देन फाइनली इफ यू सी दिस, तो हमने प्रोपोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं. ये पूरा प्रोपोर्शन का वो है. स्मॉल सैंपल टेस्ट, बस लास्ट चीज ये है. स्मॉल सैंपल टेस्ट के अंदर क्या करते हैं? सपोज आप कहते हो कि अगर मेरे पास जो n इंटू p है, वो इफ इट इज नॉट ग्रेटर देन 10, उस केस के अंदर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही लेंगे. उस केस में हम उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, और उस केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से लेंगे. इसके अंदर आपका एग्जाम्पल 8.1 है, वो बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करता है कि आप उसको आप कैसे देखोगे. आई विल स्टार्ट ऑफ, थोड़ा सा टेक्निकल है, अभी थोड़ा लेट हो गया है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, but I will start off with this particular topic, कि what is this small sample test, and then I will go to the other topic of 2 samples. आपके पास एक क्वेश्चन इससे पक्का है, एक क्वेश्चन आपका Z से आएगा, एक क्वेश्चन आपका T से आएगा, और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो आएगा वो 100% 2 सैंपल से आएगा. ये 3 क्वेश्चन आपके 100% है. जस्ट नाउ यू कैन गो थ्रू योर चैप्टर नंबर 8, जो है आप अच्छे से वो पूरा देख लो. आपको अब समझ में आना शुरू हो जाएगा. सीधा एग्जाम्पल पढ़ो, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि क्या बात हो रही है. कई बार उससे पहले आपको समझ शायद से नहीं आता. सो ट्राई टू सी एंड देन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस. यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. आई विल टेक अप योर डाउट्स टुमारो, and I will complete chapter number 9 also tomorrow. So thank you very much folks for staying up so late for this particular session. I've recorded this session. I'll put it. Thank you very much. See you tomorrow at, I don't know, maybe in the evening.